Can you see me and hear me? I'll just share the file. One minute. Can you see the file? Is the voice okay now? And can you see the file? Okay. We were doing nematodes. Remember, aquatic, terrestrial, and parasitic sexual dimorphism. Male is smaller than the female. Okay. Unsegmented nerve animals. They in the intestine they get attached with suckers. Plus, they are sanguivorous. Means they drink our blood. We talked about the syncytial epithelium in the ectoderm, in the body wall. Muscles, movement, digestive system. Okay. And we were talking about the nervous system. Okay. So nervous system mein, it has got suprapharyngeal ganglia is equal to the brain. Suprapharyngeal ganglia is equal to brain. Then it has got connectives. And then infrapharyngeally, below the pharynx, there are multiple nerve cords. Okay. Then there are chemosensory papillae, chemosensors on the lips. तो food पहचानने के लिए. Endocrine system means hormones not developed. Circulation. There is no circulatory system, so the gases are diffused, and the pseudocoelom will help for circulation. थोड़ा बहुत pseudocoelom के through the absorbed material भी जो digestive system में से जो absorb होगा, that will be going through the pseudocoelom. So it will act as a transport medium. Okay. No respiratory system. Gases will diffuse through body wall. Okay, लेकिन उसको थोड़ा बहुत ऑक्सीजन मिलता है from the blood and बाकी little bit from the body wall, but they are primarily anaerobic. Okay, they are primarily anaerobic. मतलब बिना ऑक्सीजन के ग्लाइकोलिसिस करके अपना एनर्जी उनको मिलता है. एक्सक्रीशन एमोनोटेलिक मतलब अमोनिया एक्सक्रीट करते थ्रू द स्किन, बट they also have a well developed excretory system, and these are H-shaped rennet glands. ये मरीन nematodes में होता है. मरीन मतलब जो पानी में होते हैं. You will not find this in the intestinal parasites. Okay, there are H-shaped rennet glands in the marine animals. Okay, और ये there is a single excretory pore on the body surface. Okay, so inside the body there are H-shaped glands and they all join और फिर बॉडी पे एक जगह से
excretory pore होता है, and that is in the upper part of the body, excretory pore. Okay, their anus, जो alimentary canal का anus है, that is at the end, on the tail. But excretory pore, that means for the ammonia waste or the protein waste, that is collected by the H-shaped Rennet glands, और फिर एक single excretory pore which is in the upper part of the body, वहां से बाहर निकालते हैं. But remember, ammonia they can also remove by diffusion from the body wall. Body wall में मसल्स क्या होते हैं? स्मूथ एंड लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स. रिमेंबर, स्ट्राइडेड मसल्स सिर्फ आर्थ्रोपोडा से चालू होते हैं. लोकोमोशन अगेन बाय लॉन्जिट्यूडिनल मसल, एंड उसका बॉडी थोड़ा फर्म रहता है अंदर से बिकॉज ऑफ द सूडोसीलोम. अंदर फ्लूइड भरा होता है तो बॉडी रिमेन्स फर्म, और बॉडी फर्म रहेगा तो मसल्स अच्छे काम कर सकते हैं. अगर बॉडी लपकेगा, मतलब इफ इट इज अ वेरी सॉफ्ट बॉडी, तो मसल्स अच्छी तरह मसल्स को पकड़ नहीं मिलती है फॉर doing work. Okay, so the pseudocoelom acts as a hydroskeleton and it helps in the action of muscles. Okay, sixes हमने ऊपर देखा है, they are first animals जो यूनिसेक्सुअल है. देयर इज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मतलब मेल और फीमेल आप बाहर से ही पहचान सकते हो, अलग है. द फीमेल इज लार्जर, द पोस्टीरियर एंड इज स्ट्रेट, and there is no cloaca or penile setae. मैं ये अभी बताता हूँ. Okay? Mainly you have to remember that they are large, longer, and they are not curved. But the male is smaller. It has a curved posterior end with a cloaca and copulatory spicules or penile setae. I will explain this. Okay, 1 minute. First मैं ऊपर को फिगर वापस दिखा रहा हूँ. Okay, so लेफ्ट साइड में मेल है और राइट साइड में फीमेल है. सो फीमेल इज लार्जर, और ये लंबा है इसलिए बेंड हुआ है, बट एक्चुअली देयर इज नो कर्व इन द एंड. द मेल इज स्मॉलर एंड देयर इज अ कर्व्ड एंड. ठीक है, अब ये कर्व्ड एंड पे उनका जो एनस होता है, instead of the anus they have the cloaca. Now anybody knows what is a cloaca? Anybody knows what is a cloaca? Can anybody tell me cloaca क्या होता है? इनका एलिमेंट्री कनाल जो हमारे में एनस होता है, एंड हमारा एक्सिटरी डक्ट्स, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन. वेरी गुड मालवे. ओके, आप इंटरनेट से ले रहे हो क्या? इफ यू टेक, डजंट मैटर, आई वांट यू टू गेट यूज्ड टू द इंटरनेट. अगर आप घर पे हो और आप मोबाइल यूज कर रहे हो, यू शुड नो how to quickly get information from the internet. Okay, but doesn't matter even if you do. लेकिन पहले अगर मैं पूछ रहा हूँ, so try to get the answer on your own. नहीं मिलता है तो you can take it from the internet. I don't mind. Okay, so this is हमारे में जैसे mammals में वगैरह anus is the end of the alimentary canal, the rectum and the anus, and we have a separate opening for the urethra, that is for the urine to pass. So the anus and the urethra are two separate openings. They're two separate openings. पर इनमें क्या होता है, जो रेक्टम जैसा पार्ट होता है उसी में उनका यूरेथ्रा ओपन होता है. द ब्लैडर ओपन्स इनटू द रेक्टम, एंड फिर रेक्टम एंड ब्लैडर का एक कॉमन जैसा चेंबर बन जाता है. इट्स अ मिक्स्ड चेंबर एंड इट कम्स आउट थ्रू अ कॉमन ओपनिंग, वन ओपनिंग. देयर इज ओनली वन ओपनिंग ऑन द आउटसाइड. ओके, सो ऐसे चेंबर में जिसमें यूरिन एंड स्टूल दोनों पास होता है, दैट इज कॉल्ड अ क्लोएका. नाउ in the male, even the gametes will pass through this. But female में cloaca नहीं होता है. The urinary tract is different from the anal tract. Okay, so अभी differences में क्या याद रखना है? The female is larger. It is a straight large body
there is no curved end, there is no cloaca, and there is no penile setae. Penile setae मतलब growths. ये देखो इधर बाजू वाले ऑर्गेनिज्म में दिखता है स्मॉल ग्रोथ्स फ्रॉम द बॉडी. Okay, so these are growths from the end which are used for copulation, for intercourse, because ये unisexual animals है and sexually reproducing animals है. So the male will copulate with the female through the penile setae जो यहाँ end पे होते हैं. Okay, naturally female में वो नहीं होते. Okay, so these are the differences between the male and the female. Male में small body, curved end, cloaca and penile setae. Okay, that is how you must remember. Okay, now reproduction. पहले fertilization देखो नीचे yellow में. Fertilization is cross and internal. Cross मतलब two organisms are involved and one will deposit the sperms in the other. So the male will deposit the sperms in the female. So it is cross fertilization. Second, the sperms will be deposited inside the body of the female. So it is internal fertilization. जैसे human beings में mammals में होता है. This cross fertilization and internal fertilization. Okay. अब तक हमने क्या देखा था? In planaria there is क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, वो पीनाइल फेंसिंग. फिर हमने देखा था इन टीनिया देयर इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन, वो प्रोग्लॉटिड्स के अंदर ही, देयर इज नो क्रॉस फर्टिलाइजेशन. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है? क्रॉस एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. द सेक्सेस आर सेपरेट. ओके, वी सेड दे आर यूनिसेक्सुअल एंड डायोशियस, मींस बोथ द सेक्सेस आर सेपरेट. ओके, नाउ देयर आर डिफरेंट एनिमल्स जो हमको स्टडी करने हैं. मतलब इन दिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स, निमेटोड्स में देयर आर सर्टेन एनिमल्स व्हिच यू मस्ट नो. फॉर एग्जांपल एस्केरिस. एस्केरिस मींस द टिपिकल राउंडवर्म जो हमारे इंटेस्टाइन में अक्सर इन्फेक्शन करता है. अदर इज वुचेरेरिया. वुचेरेरिया, इसका पूरा नाम है वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी. ओके, दिस इज कॉल्ड द फाइलेरियल वर्म. ओके, ये मैं आगे करने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू डू द डिफरेंट इंपॉर्टेंट एनिमल्स फ्रॉम निमेटोड, आगे हम करने वाले हैं. ओके, बट व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज आई टोल्ड यू दे कैन बी प्लांट पैरासाइट्स, मतलब रूट को पैरासाइटिस करके प्लांट्स के अंदर घुस सकते हैं, वन. एंड सेकेंड, दे कैन बी एनिमल पैरासाइट्स, जो हमारे इंटेस्टाइन में भी आते हैं, विच मीन्स दे हैव इंटरेक्शन विद द ह्यूमन बींग्स. हमारे बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस करते हैं. सो वी हैव टू स्टडी दीज इन डिटेल्स. फिलहाल हम उनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं. डेवलपमेंट, इसमें अलग अलग एनिमल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया एस्केरिस, वुचेरेरिया, पिनवर्म्स होते हैं अलग अलग, और उनका जो लाइफ साइकिल होता है सबका अलग अलग है. सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी इट राइट नाउ. ओके, बट वी हैव टू रिमेंबर दैट फर्टिलाइजेशन इज क्रॉस एंड इंटरनल एंड द मेल एंड द फीमेल सेक्सेस आर डिफरेंट. ओके, देयर इज नो लार्वल स्टेज, मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है. अब तक हमने क्या देखा था? लार्वा इज प्रोड्यूस्ड, वो छोटा भी होता है और एडल्ट से अलग होता है. बट इन दीज एनिमल्स देयर इज नो लार्वल स्टेज. एनिमल जो बॉर्न होगा वो छोटा होगा, बट इट विल बी एग्जैक्टली लाइक द एडल्ट. ओके, नो सोशल लाइफ, मतलब उनमें आपस में इंटरेक्शन नहीं होता है. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हम देखेंगे आर्थ्रोपोड ऑनवर्ड्स एनिमल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. तो विद इन अ कम्युनिटी और पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, अलग अलग कॉकरोचेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज सोशल लाइफ. बट इनका देयर इज नो सोशल लाइफ एक्सेप्ट फॉर रिप्रोडक्शन, वो एक दूसरे से मिलते नहीं है. ह्यूमन इन्फेक्शन, ओके, जो मैं बता रहा था. विच आर द ह्यूमन पैरासाइट्स, मतलब निमेटोड्स ऐसे कौन से हैं जो ह्यूमंस में इन्फेक्शन करते हैं, और ये सब आपको याद रखने हैं. ओके, फर्स्ट इज एस्केरिस, इट इज कॉल्ड राउंड वर्म. Second is ankylostoma, hookworm. Wuchereria, it is called it causes filariasis, or it is called filarial worm. Enterobius is pinworm. Okay,
तो ये वैसे बहुत सारे अलग अलग वर्म्स है जो हमको इन्फेक्ट कर सकते हैं, पर ये 4 कॉमन है: एस्केरिस, एंकिलोस्टोमा, वुचेरेरिया एंड एंटेरोबियस, राउंडवर्म, हुकवर्म, फाइलेरियल वर्म, पिनवर्म। ओके, ये 4 हमको याद करने हैं। एंड जब हम डिजीजेस स्टडी करेंगे तब इनका लाइफ साइकिल, वो क्या डिजीज एग्जैक्टली करते हैं, वो सब हम स्टडी करेंगे। ओके, नाउ ये ह्यूमन पैरासाइट है। नाउ नेक्स्ट आई एम डूइंग इज प्लांट पैरासाइट। ये प्लांट्स को भी रूट पैरासाइट करते हैं एंड यूजुअली दे गो इनटू द रूट्स ऑफ द प्लांट। ये मैंने गलत नाम लिखा है, मैं सही नाम लिख रहा हूं। मेलोइडोजिन, मेलोइडोजिन इनकॉग्निशिया, डिफिकल्ट नाम है, बट दिस इज अ इम्पोर्टेंट प्लांट निमेटोड। ये रूट्स में जाता है और रूट्स में ऐसे कुछ चीजें डालता है जिसके वजह से रूट्स में ट्यूमर या कैंसर होता है। मतलब रूट के सेल्स बहुत मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और अब वो मल्टीप्लाई करेंगे तो दे विल प्रोड्यूस मोर न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोथ ऑफ द निमेटोड। So they go into the root of the plants. वहाँ पे they secrete certain substances which will produce a cancer or too much multiplication of the root cells. और ये root cells उसके लिए खाना बनाएंगे and it will survive because of causing cancer in the root cells. ये important इसलिए है because a very important plant को ये infect करते हैं, that is tobacco plant. टोबैको मालूम है, जैसे आपके सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू सब बनता है। एंड टोबैको इज अ कैश क्रॉप। ओके, बहुत सारी कंट्रीज की इकोनॉमी पूरी टोबैको पे चलती है और ये टोबैको को जाके ही इन्फेक्ट करता है। सो टोबैको का आउटपुट कम कर देता है। सो दैट इज अ बिग लॉस फॉर कैश क्रॉप फार्मिंग। ओके, सो दैट इज व्हाई दिस पैरासाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एक पैरासाइट है दैट इज निमेटोड। अगेन इसका भी नाम थोड़ा अतरंगी है, सिनॉर्बिटिडिस। ओके, सिनॉर्बिटिडिस तो भी आगे है, मैं भूल गया। ओके, नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस वाज द फर्स्ट nematode whose DNA sequencing was done. सेकेंड ईयर में या 12th में आपके चैप्टर्स कुछ आएंगे जिसमें जेनेटिक मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी आएंगे, तो वहां पे ये दोनों आने वाले वापस। तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सो सिनॉर्बिटिडिस, दिस इज सिनॉर्बिटिडिस एलिगेंस। हाँ, दिस इज अ निमेटोड जिसका पूरा डीएनए सीक्वेंस साइंटिस्ट ने खोज निकाला है। ये कब हुआ था? when a project was done called the HGP, Human Genome Project. Okay, तो ह्यूमंस के डीएनए में जो सब न्यूक्लियोटाइड्स होते, पूरा उसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया गया था अराउंड द ईयर 2000। लेकिन जब ह्यूमंस का कर रहे थे तब कुछ अदर एनिमल्स का भी किया था, जैसे कुछ बैक्टीरियम का किया था, ड्रोसोफिलिया, फ्रूट फ्लाई का भी किया था, फिर राइस, जो हमारा ग्रेन राइस है, उसका भी डीएनए निकाला था इन डिटेल। तो दैट टाइम एक निमेटोड का भी डीएनए खोज निकाला था डिटेल में। सो दैट इज दिस ऑर्गेनिज्म सिनॉर्बिटिडिस। और ये मेलेडोजिन क्या है? इट इज अ टोबैको प्लांट पैरासाइट। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं, जब हम ये डिजीजेस करेंगे तब आपको ये डिटेल में जानना पड़ेगा। ह्यूमन इंटरेक्शन, ओके, वो मैंने ऊपर ही यहाँ पे कर दिया है कि देर आर मेनी worms, roundworms which will affect human beings, तो हम वो अलग से करेंगे। ठीक है, so that is about nematodes.
Now we are going to do the next important phylum, that is annelids. Okay, you can have a look at the figure. ये 3 अलग अलग एनिलिड्स है. ऊपर वाला है जो पानी में होता है, इट इज कॉल्ड नेरीज. ये पानी में मिलता है एनिलिड. बीच वाला है दैट इज द अर्थवर्म, टिपिकल जो आपको सॉइल में मिलता है, टेरेस्ट्रियल. और नीचे वाला जो लास्ट वाला दैट इज द लीच, ये जो स्किन पे सकर्स डाल के स्किन से खून चूसता है, लीच. ओके, सो ऑल दीज थ्री आर worms which have got segmented bodies. ये देखो segments हमने किया segments, so they are called segmented worms. Okay, और मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ. 2 मिनट के बाद हम स्टार्ट करेंगे एनिलिड्स. ठीक है.
या अली और देर, सॉरी मेरा कॉम्प ऑफ हो गया था. कैन यू हियर एंड सी मी? कैन यू सी मी एंड हियर मी? ओके, स्लाइड दिख रहा है? कैन यू सी द स्लाइड ऑल्सो? ओके ग्रेट. सो अभी हम कर रहे हैं सेगमेंटेड वर्म्स. पहले हमने किया प्लेटीहेल्मिन्थस, फ्लैटवर्म्स. देन वी डिड राउंड वर्म्स. ओके, राउंड वर्म्स में बॉडी फ्लैट होता है, आई मीन स्मूथ होता है. देयर आर नो सेगमेंट्स एंड दे आर राउंड. These worms are also round, cylindrical, but they are segmented. ओके, और उसके तीन मेन टाइप्स होते हैं. एक जो पानी में मिलता है, नेरीज. एक जो अर्थ या सॉइल में मिलता है, दैट इज earthworm. And one is a blood sucking worm, that is leech. Slide is not visible. Okay, 1 minute. Now slide is visible. Can you see the slide? Okay. Okay, so these are long cylindrical hollow worms. They are free living. अकेले अकेले जिंदे, मतलब they are not colonial. They can be aquatic or terrestrial. They are segmented cylindrical worms. Okay. Now naturally they are triploblastic, bilaterally symmetrical with tube in tube plan. मतलब एलिमेंट्री कैनाल में माउथ और एनस दोनों होता है. with organ system level of organization. They are protostomes, मतलब उनका माउथ पहले बनता है with true coelom, that is a schizocoelom. This is a type of eucoelom. हमने किया था differences. And they show metameric segmentation, मतलब उनका बॉडी सेगमेंटेड भी होता है और उसमें there is serial repetition of parts also, and each segment is called a metamere. लेकिन बाहर से the segments look like rings, as if rings are attached to each other. So ring is, the word for ring is annulus. So they, as if there are many annuli, it is made up of many rings. ऐसा वो cylindrical long body होता है उसका. Connecting link not known. Okay, soft bodied animals में fossils नहीं मिलते, तो अक्सर उनका ancestral forms, मतलब पहले जमाने में क्या उसके कनेक्टिंग लिंक थे या वो एंसेस्ट्रल एनिमल्स कैसे थे, वो कभी कभी पता नहीं चलता है. सो नो कनेक्टिंग लिंक. ओके, नाउ इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट, मतलब निमेटोड के हिसाब से नई नई चीजें क्या आ गई. तो पहले तो फर्स्ट एनिमल्स टू हैव अ ट्रू सीलोम, है ना, क्योंकि निमेटोड में सूडोसीलोम था. निमेटोड में हमने देखा बॉडी वॉल में लॉन्जिट्यूडनल मसल्स होते हैं, इसमें लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स भी होते हैं. एंड फर्स्ट एनिमल्स टू बी सेगमेंटेड, मेटामेरिकली सेगमेंटेड. देन फर्स्ट एनिमल्स टू हैव अ क्लोज्ड सर्कुलेशन. अभी तक हमने देखा सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं था. जो भी सर्कुलेशन होता था सीलम के थ्रू होता था, सूडो सीलम के थ्रू वगैरह, या बॉडी वॉल के थ्रू डिफ्यूजन से गैसेस अमोनिया वगैरह डिफ्यूज होते थे. सो दे आर द फर्स्ट एनिमल्स टू हैव अ वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, एंड नॉट ओनली दैट, दे हैव गॉट मल्टीपल हार्ट्स. जैसे एक हार्ट होता है ना, इनके मल्टीपल हार्ट्स होते हैं. क्यों? क्योंकि उनका जो हार्ट्स होते हैं वो वीक होते हैं, तो एक हार्ट काम नहीं कर पाता है. सो दे रिक्वायर मल्टीपल हार्ट्स फॉर पुशिंग एंड पंपिंग द ब्लड. ओके, सो मल्टीपल हार्ट्स होना कोई अच्छी बात नहीं है. इट ओनली मीन्स के उसके हार्ट्स जो होते हैं वो वीक होते हैं, सो दे रिक्वायर मल्टीपल हार्ट्स. देन अगेन द फर्स्ट एनिमल्स टू हैव अ रेड पिगमेंट इन द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम. दिस इज ब्लड. इस मीन्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए देयर इज अ रेड पिगमेंट व्हिच इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन. तो पहली बार आपको एनिमल्स मिलेंगे जिसको काटोगे तो लाल खून निकलेगा. ओके, इसके पहले जो भी एनिमल्स थे, एक तो उनमें खून था ही नहीं, और खून अगर था सर्कुलेटिंग फ्लूइड तो उसमें कोई पिगमेंट नहीं था, कलर्ड पिगमेंट नहीं था. ओके, सिलोमिक फ्लूइड जो होता है वो भी कलरलेस होता है. सो दीज आर द फर्स्ट एनिमल जिसको काटने पे आपको दिखेगा. देन दे हैव मेटानेफ्रीडिया. इफ रिमेंबर, हमने प्लेटिहेल्मिन्थस में किया था प्रोटोनेफ्रीडिया. प्रोटो मतलब पहला या प्रिमिटिव. फिर
निमेटोड में हमने रेनेट ग्लैंड्स देखे थे, इसमें होता है मेटानेफ्रीडिया। मेटा मतलब चेंजिंग, मतलब डिफरेंट टाइप्स का, तो नेफ्रीडिया मीन्स अ प्रिमिटिव नेफ्रॉन, मतलब बहुत एडवांस नहीं होता है, लेकिन मेटा मतलब चेंजिंग या अलग अलग टाइप के। तो इसमें 3 टाइप्स के नेफ्रीडिया होते हैं जो एक्सक्रीशन का या ऑस्मोरेगुलेशन का काम करते हैं। दे आर द फर्स्ट एनिमल्स टू हैव अ कॉम्प्लेक्स जीआईटी। कॉम्प्लेक्स मतलब उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होते हैं। निमेटोड में हमने देखा था देयर आर नो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एंजाइम सीक्रेट करते हैं फ्रॉम द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, लेकिन देयर आर नो ग्लैंड्स अलग से, सेल्स ही डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं। ओके, सो दीज आर द एडवांसिंग फीचर्स ऑफ एनिलिड ओवर द निमेटोड्स। मतलब पहली बार ये सब फीचर्स कोई एनिमल्स में आपको मिले थे। ट्रूसिलम, longitudinal and circular muscles in the body wall, metameric segmentation, well developed circulation with hearts, red pigment for carrying oxygen in the blood, metanephridia for excretion, and a complex digestive system with digestive glands. Okay, so ये सब if you realize मतलब ये काफी एडवांस्ड एनिमल है। इसके आगे आर्थ्रोपोड्स आएंगे, उसमें तो बहुत सारी चीजें ह्यूमन जैसी मिलेगी, but even earthworm is quite advanced. यूनिक फीचर्स मतलब ऐसे फीचर्स जो अदर एनिमल्स में आपको नहीं मिलेंगे। वन इज सीटे, आई विल टेल यू व्हाट इट इज। सेकेंड इज कंप्लीट सेगमेंटेशन। इफ यू रिमेंबर, उसका बॉडी बाहर से भी सेगमेंटेड होता है, अंदर से भी सेगमेंटेड होता है। सो द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स। जो बाहर से जो सेगमेंट होता है, जो सेप्टा बनता है, डिवीजन, वो थ्रू एंड थ्रू बॉडी तक में जाता है। सो द एनिमल इज मेड अप ऑफ मल्टीपल कंपार्टमेंट्स। ओके, कंप्लीट सेगमेंटेशन। ओके, एंड देन मेटानेफ्रीडा, इसमें जो नेफ्रॉन जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी आपको और किधर नहीं मिलेंगे। ओके, नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज सीटा। ओके, सीटा मतलब आप ऊपर देखोगे कि उसकी स्किन में से छोटे छोटे व्हाइटिश ब्रिसल लाइक, मतलब ब्रश के हेयर के जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं। दे आर नॉट माइक्रोस्कोपिक बट दे आर वेरी स्मॉल, एंड दे आर नॉट मेड अप ऑफ स्किन बट दे आर मेड अप ऑफ अ काइटिनस मटेरियल। काइटिन मतलब जो हम आगे जाके आर्थ्रोपोड में देखेंगे, एक्सोस्केलेटन इज हार्ड एंड इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो इसकी बॉडी सॉफ्ट होती है, लेकिन इट हैज गॉट दिस काइटिनस एक्सटेंशन फ्रॉम द बॉडी, दे आर कॉल्ड सीटा। सीटा मतलब एक और सीटे मतलब दो। ये क्यों होता है? आपको अर्थों में भी मिलेगा लेकिन कम मिलेगा, यहाँ दिख नहीं रहा है। ओके, और ये नेरीज में आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये एनिमल फॉर एग्जांपल अर्थवर्म जब सॉइल में बरो करता है तो मसल्स के फोर्स से वो अंदर जाता है, लेकिन अंदर जाने के लिए उसको जो होल में बरो करेगा उसके साइड्स को पकड़ना पड़ता है, उसमें ग्रिप चाहिए। तो वो ग्रिप मिलता है बिकॉज ऑफ दिस सीटा। सो सीटा आर नॉट लोकोमोटरी ऑर्गन्स बट दे असिस्ट इन लोकोमोशन। तो दैट इज सीटा। ठीक है, ये सीटा आपको लीच में नहीं मिलेगा क्योंकि वो बरो नहीं करता है, लेकिन आपको अर्थवर्म में भी मिलेगा और ये एक्वेटिक एनिलिड में भी मिलेगा, क्योंकि एक्वेटिक तो है, पानी में घूमता है, लेकिन सी बेड में बरो भी कर सकता है ये, तो उसको सीटा होते हैं। इनफैक्ट ये जो एक्वेटिक एनिमल है उसको बहुत ज्यादा सीटा है। इफ यू कैन सी देयर आर सो मेनी सीटा। सो नाउ सीटा का और एक वर्ड है कीटा, क्योंकि काइटिन का बनता है ना, CHETAE, कीटा और कीटे। सो इसका जो क्लासिफिकेशन होता है ये एनिमल का, इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कीटा पर सेगमेंट। सो नेरीज, ये जो एक्वेटिक एनिलिड है, इट इज कॉल्ड पॉलीकीटा। सो इसका ग्रुप नेम है पॉलीकीटा। देयर मेनी सीटा। अर्थवर्म है उसमें बहुत कम होते हैं, यहाँ तो दिख भी नहीं रहे लेकिन होते हैं। सो उसमें बहुत कम सीटा होते पर सेगमेंट। सो दे आर कॉल्ड ओलिगोकीटा। ओलिगोस मतलब फ्यू। ओके, एंड द लास्ट group of animals is
उसका कीटा के हिसाब से नहीं होता है, बिकॉज कीटा होता ही नहीं है, एंड दिस इज कॉल्ड हीरोडीनिया। वो हीरोडीनिया अलग वजह से नाम पड़ा है उसका, हीरोडीनिया। ओके, सो यू हैव पॉलीकिट्स, ओलिगोकिट्स एंड हीरोडीनिया, ठीक है। एंड द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द number of CETA per segment of the body. Habitat. Okay. Now they've got multiple habitats. जैसे हमने देखा aquatic भी होता है. So the aquatic annelids are called Nereis. NERES. ठीक है. Terrestrial are Oligochaeta. And उसमें है earthworm. Earthworm का biological name है Ferritima. Ferritima. Okay. And these are burrowing animals. So moist soil में आपको मिलेंगे. अगर सॉइल सूखा हो जाएगा, पानी या रेन नहीं होगा, तो वो जिंदा नहीं बचेंगे. सो दे रिक्वायर मॉइस्ट सॉइल. देन यू हैव एक्टोपैरासाइटिक एनिमल्स जैसे लीच, बिकॉज स्किन पे, स्किन मतलब एक्टो, एक्टोपैरासाइट्स, दे सक स्किन ब्लड फ्रॉम द स्किन, दैट इज कॉल्ड हीरोडीनिया, एंड सच एनिमल्स आर कॉल्ड sanguivorous, so they suck blood. Okay? So you have different habitats: aquatic, terrestrial in the moist soil, and they are ectoparasitic also. ये तीनों यू हैव टू रिमेंबर, वो तीनों एनिमल्स कॉमन है. हैबिट. सो अर्थवर्म्स कैन बी बरोइंग एंड फ्री लिविंग. अगेन आपको अर्थवर्म्स झुंड में नहीं मिलेंगे, अकेले अकेले मिलेंगे. सो दे आर फ्री लिविंग. ओके. लीच आर फाउंड ऑन मेनी मैमल्स. वैसे वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन जैसे ही उनको कोई मैमल मिला उसको चिपकने की कोशिश करते हैं. सो दे आर एज एक्टोपैरासाइट्स. ओके. एंड नेरीज कहाँ मिलेगा आपको? एक्वेटिक भी होता है. Okay, so you have three types of habitats. Level of organization. Okay, they are very pretty advanced animals, so they have organ system level of organization. They're triploblastic and bilaterally symmetrical. Cephalization. Okay, एक मिनट, 1 minute. They have a head. Okay, उनका माउथ होता है, माउथ की तरफ से, मतलब हेड की तरफ से वो बरो भी करते हैं, और कभी रिवर्स में नहीं जाते, जहाँ पे हेड होता है उसी डायरेक्शन में यूजुअली मूव करते हैं. So they do have a head. There are many sensors on the head side or the mouth side of the animal. So there is beginning of cephalization. But उनका सर और body अलग नहीं है. There is no neck in between. So it is an indistinct head. The head is not distinct. Okay? और कौन से सेंसर्स मिलेंगे आपको? सेंसरी ऑर्गन्स आपको फोटो सेंसर्स मिलेंगे, मतलब लाइट सेंसिंग. ओके. जो एनिमल पानी में होता है नीचे जाता है या मड में जाता है, एक बार मड में या पानी में डीप चला गया, फिर पता नहीं चलता है कि ऊपर कौन सा है और नीचे कौन सा है. सो यू विल फॉलो लाइट. जिस तरफ लाइट है मतलब वो ऊपर है. दैट इज हाउ इट रिकग्नाइजेस के कैसे ऊपर आना वापस, बिकॉज इट हैज गॉट फोटो सेंसर्स. ओके. आईज लिखा है बट कैन, देयर आर नो आईज, इट कैन नॉट सी बट इट कैन सेंस लाइट. फिर माउथ पे कीमो सेंसर्स होते हैं. ओके. नेरीज निकाल लो ना. अर्थवर्म में आप देखोगे कि उसका पूरा अपर सरफेस होता है ना, अपर सरफेस, पूरे सरफेस पे टच सेंसर्स भी होते हैं. टच सेंसर्स, टच को बोलता है टेक्टस. सो दे आर कॉल्ड टेक्टाइल सेंसर्स. टेक्टाइल सेंसर्स क्योंकि ये नेसेसरी है, बिकॉज जब वो बरो करता है तो उसके आसपास के ग्राउंड का, सॉइल का फील आना चाहिए, तब उसको पता चलेगा कि अंदर जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ. okay, so it requires tactile senses on the whole body. Okay, and upper surface पे, not only on the head but on the whole upper surface it has got photo sensors. So कहाँ पे भी वो सॉइल में अंदर घुस जाएगा, उसको पता चलेगा कि लाइट किस तरफ है. ओके. ऑफ कोर्स बहुत डीप जाने के बाद लाइट नहीं मिलता है, लेकिन अगर वो नियर द टॉप है तो उसको पता चलता है कि ऊपर की तरफ लाइट है. ओके. बॉडी प्लान. ट्यूब इन ट्यूब
and metamerically segmented body plan. Fate of blastopore मतलब वो जो ट्यूब इन ट्यूब में पहले क्या बनता है, ब्लास्टोपोर का बनता है माउथ, सो दे आर कॉल्ड प्रोटोस्टोम्स. बॉडी फॉर्म मतलब उसका शेप कैसे होता है बॉडी का, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. दे आर सॉफ्ट, सिलिंड्रिकल, hollow segmented worms. Okay, hollow segmented worms with plus minus setae मतलब setae may be there or may not be there. They're metamerically and completely segmented. The segments are called metameres. Externally the segments are in the form of small rings, so they are called annuli. So बाहर से rings attached है ऐसे लगता है. Internally there are transverse septa which will divide the body of the animal into compartments. एंड उसका जो कंपार्टमेंट्स होता है या सेगमेंटेशन है, दैट इज होमोनोमस. वेरी इंपॉर्टेंट. होमोनोमस मतलब हर एक सेगमेंट में सेगमेंट सेम होता है, सिमिलर होता है. सो ऑल द सेगमेंट्स आर सिमिलर, होमोनोमस. कुछ एनिमल्स हम आगे देखें, दे आर हेटेरोनोमस मतलब अलग अलग सेगमेंट में आपको अलग अलग चीजें मिलेगी. ठीक है, दे आर होमोनोमस सेगमेंटेशन. अपेंडेजेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अपेंडेजेस. एक तो हमने डिस्कस किया सीटा. दे आर स्मॉल hair like structures but they are little hard. They are made up of chitin. उसका काम क्या है, they help grip the surrounding soil जब burrowing करना हो तो. okay? और ये आपको aquatic forms मतलब नेरीज में भी मिलेगा और अर्थों में भी मिलेगा. but there is one more structure called parapodia. पोड़ा मतलब क्या, पोड़ा in biology poda means what? PODA. poda means legs. Very good. So pseudopodia means false legs and parapodia means not pseudo but they are like legs but they are not actually legs. ओके, तो जो एक्वेटिक फॉर्म होता है ना, एक्वेटिक फॉर्म नेरीज, एक तो हमने देखा कि उसके बॉडी पे सेगमेंट्स में से वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं. बट सम एनिमल्स, ये अगर बॉडी है तो ऑन द सेगमेंट्स दे हैव गॉट स्मॉल स्ट्रक्चर्स, लेग लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड पैरापोडिया. ये पैरापोडिया स्विमिंग में भी हेल्प करता है, स्विमिंग में भी हेल्प करता है एंड वो पैरापोडिया पोरस होता है तो गैस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है. ओके, so parapodia are found only in nares, that is in the aquatic forms. They are used for locomotion and they are used for gas exchange. okay, remember इनके बॉडी में जो मेन लोकोमोशन होता है वो बॉडी के मसल से होता है, लेकिन एक बार अंदर घुस रहे कहीं सॉइल में वगैरह, मैंने बताया कि वाटर या एक्वेटिक वर्म्स भी नीचे सॉइल में घुस सकते हैं. तो वंस दे गो इनसाइड फिर मसल मूवमेंट काफी नहीं पड़ता है. तो समटाइम्स दिस पैरापोडिया विल हेल्प leg like structures. Body wall. Okay, we have done it metamerically segmented and there are annuli or ring like structures on the body wall जो लगता है join हुए. हमने कीटे और सीटा भी किया है and पैरापोडिया भी किया है. Skeleton, they do not have a true endoskeleton, लेकिन अंदर सीलम होता है, ट्रू सीलम, which acts like a hydroskeleton. and हर एक उसके सेगमेंट में या हर एक कंपार्टमेंट में the coelom is also divided because the whole body is internally divided. तो उसका सीलम ऐसे वन पीस नहीं होता है पूरे एनिमल में, हर एक कंपार्टमेंट में एक एक सीलम होता है. ओके, सो एंड दे आर नॉट फ्यूज्ड एक्सेप्ट आगे वाले कुछ सेगमेंट्स होते हैं उसके माउथ की तरफ, उसमें देर आर नो सेप्टा, इंटरनल सेप्टा, तो सीलम इज वन पीस. वो हम अलग से डिटेल में करेंगे. जनरली यू शुड नो दैट द सीलम इज ऑल्सो सेगमेंटेड बिकॉज ऑफ सेप्टा. Okay, now exoskeleton. Now it does not have a proper exoskeleton, but it has a thin cuticle. हमने क्यूटिकल देखा था एंडोपेरासाइट्स में, टीनिया में भी देखा था और कुछ निमेटोड्स में भी होता है. ओके, सो इट इज अ थिन लेयर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, तो उसको बाहर की केमिकल से या चीजों से प्रोटेक्ट करता है. ओके, सो इट इज अ थिन क्यूटिकल. मसल्स कौन से होते हैं बॉडी वॉल में? मसल्स आर स्मूथ मतलब दे कैन नॉट मूव वेरी फास्ट.
हम नेक्स्ट फाइलम आर्थ्रोपोड से देखेंगे, स्केलेटल मसल्स होते हैं, तो आर्थ्रोपोड्स कैन मूव वेरी फास्ट, बट अप टू अर्थवॉर्म्स मूवमेंट इज वेरी स्लो बिकॉज ऑफ स्मूथ मसल्स। लेकिन ये दो टाइप के होते हैं, बॉडी वॉल में लॉन्जिट्यूडनल भी होते हैं और सर्कुलर भी होते हैं। नॉट ओनली दैट, उसके एलिमेंट्री कैनाल मतलब जीआईटी में भी मसल्स होते हैं, बोथ सर्कुलर एंड तो आप देख रहे हो कि मसल्स भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं। प्लेटिहेल्मिन्थस में सिर्फ लॉन्जिट्यूडनल मसल्स थे और वो सिर्फ बॉडी वॉल में थे। निमेटोड में देखा, वो बॉडी वॉल में तो लॉन्जिट्यूडनल मसल्स है, लेकिन उसके माउथ और फेरिंग्स में भी मसल्स है। अब यहाँ देखोगे बॉडी वॉल में लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स है, प्लस एलिमेंट्री कैनाल में, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में स्मूथ एंड सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडनल मसल्स है, क्योंकि इनको पेरिस्टाल्सिस करना पड़ता है। पेरिस्टाल्सिस क्यों करना पड़ता है? फूड मटेरियल को आगे धकलने के लिए, फॉर प्रॉपर डाइजेशन। एंड व्हाई? बिकॉज दे ईट ऑल डेड डिकेइंग मैटर। तो इंसेक्ट्स के पार्ट्स भी खाते हैं, छोटे छोटे हार्ड सब्सटेंसेस भी खा लेते हैं। तो व्हेन यू हैव सॉलिड सब्सटेंसेस फॉर फूड, तो आपको पेरिस्टाल्सिस लगेगा उसको आगे भेजने के लिए। ओके, सो दैट इज अबाउट द स्केलेटन, एंड देयर इज अ थिन क्यूटिकल एक्सोस्केलेटन। मसलदार स्मूथ एंड लॉन्जिट्यूडनल, और जीआईटी या एलिमेंट्री कैनाल में भी मसल्स होते हैं फॉर पेरिस्टाल्सिस। सेकेंडरी बॉडी कैविटी मतलब सीलोम, यस दे हैव इट, इट इज अ ट्रू शीजोसीलोम। हमने डिस्कस किया व्हाट इज अ शीजोसीलोम। रीजनरेशन प्लस माइनस, मतलब थोड़ा बहुत इंजरी हुआ तो वो रीजनरेट हो सकता है, पर पूरा एनिमल रीजनरेट नहीं हो सकता है। जैसे एडवांस होंगे एनिमल्स, कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन कम हो जाती है। ऑर्गन सिस्टम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहला एनिमल है जिसमें most of the organ systems are present except respiratory system. सर्कुलेशन है, नर्वस सिस्टम है, एक्सीडरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम हमने आगे देखा है, इट इज कंप्लीट, मतलब इट हैज टू ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस, प्लस इट इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड भी है। ठीक है, सो विल गो इन द डिटेल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। दिस कंप्लीट स्ट्रेट, हमारा इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल कॉन्वोल्यूटेड है, क्योंकि बहुत लंबा है तो जगह नहीं है तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कॉन्वोल्यूटेड। बट इसका एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ और उसका बॉडी का लेंथ सेम होता है, सो द एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट, इट इज मस्क्यूलर। ऊपर देखा मसल मतलब पेरिस्टाल्सिस के लिए मसल्स होते हैं, विथ स्टोमेडियम, स्टोमेडियम मतलब माउथ, उसमें गिजार्ड भी होता है, आई टेल यू व्हाट इज अ गिजार्ड, एंड अ टाइफोसोल। ठीक है, अब ये चीज है कुछ स्पेशल है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, तो आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू नाउ। व्हाट इज अ स्टोमेडियम? स्टोमेडियम मतलब माउथ, और माउथ कैसे बनता है? ओके, इट मेक्स फ्रॉम द ब्लास्टोपोर, इट इज अ प्रोटोस्टोम, लेकिन उसका जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है वो अलग से बनता है, एंड देन दे जॉइंट। सो स्टोमेडियम मतलब अलग से जो माउथ बनता है, दैट इज कॉल्ड अ स्टोमेडियम। इट इज नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ द होल एलिमेंट्री कैनाल, वो अलग से बनता है। वन सेकेंड, व्हाट इज अ गिजार्ड? गिजार्ड इज अ मॉडिफाइड स्टमक, और वो स्टमक के अंदर काइटिनस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो च्यूइंग और चर्निंग का काम करते हैं। उनके माउथ में टीथ नहीं होते, तो अगर वो हार्ड सब्सटेंसेस उन्होंने खा लिया तो उसका चर्निंग एंड ब्रेकिंग डाउन विल हैपन इन द स्टमक। हमारा स्टमक सॉफ्ट होता है, उसमें मिक्सिंग हो सकता है, लेकिन मैस्टिकेशन या च्यूइंग नहीं हो सकता है। बट अर्थवर्म्स में स्टमक हैज गॉट हार्ड काइटिनस टीथ, अंदर टीथ होते हैं, एंड दे कैन हेल्प टू ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल। ऐसा ही गिजार्ड आपको कुछ रेप्टाइल्स में भी मिलेगा और बर्ड्स में भी मिलेगा। बर्ड्स भी सीड्स खाते हैं, और वो उनके टीथ नहीं होते बर्ड्स के, तो पूरा का पूरा सीड खा जाते हैं, और फिर वो उनके गिजार्ड में डाइजेस्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है, और फिर इंटेस्टाइन में जाता है फॉर डाइजेशन। ओके, सो
दैट इज द गिजार्ड. नाउ टाइफोसोल क्या है? उसका जो इंटेस्टाइन है वो स्ट्रेट है. अब सामने से देखोगे तो सर्कुलर है, लेकिन ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द इंटेस्टाइन देयर इज एन एक्सटेंशन. एक ऐसा एक्सटेंशन होता है पूरे इंटेस्टाइन में. थॉट दिस इज मेड बिकॉज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. ये अर्थवर्म्स बहुत अतरंगी चीजें खाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, डेड डिकेइंग मटेरियल. तो डाइजेशन उसको थोड़ा एडवांस चाहिए, और डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन के लिए भी ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए. सो दिस टाइफोसोल इज अ इंटरनल एक्सटेंशन ऑफ द इंटेस्टिनल वॉल, जिससे उसका सरफेस एरिया बढ़ता है. ओके, सो यू मस्ट रिमेंबर द डाइजेस्टिव ट्रैक इज कंप्लीट. यहाँ लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स, straight and muscular. Thus, it has got special parts like the stomatium, that is a differently made mouth, a gizzard, which is it is called a masticating stomach, चबाने वाला stomach, and typhosol to increase the surface area. Okay? और उसमें digestive glands भी होते हैं. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इतने वेल डेवलप्ड नहीं होते अपने पेनक्रियाज और लिवर की तरह, बट दे हैव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ओके, नाउ न्यूट्रिशन. They are heterotrophic, they cannot make their own food. They are saprophytic, means they'll survive on dead decaying matter. They are holozoic, मतलब पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म खाएंगे, मतलब डाइजेस्ट करके बाद में न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म खाने की कोशिश करेंगे. एंड दे सर्वाइव ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर ये. सो जो आप जैसे अर्थवर्म में आप देखोगे तो इट द लीव्स जो गिरते हैं, एनिमल्स जो मरते हैं और जो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, ये सब चीजें वो खाते हैं. ओके, सो दे टेक डेड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर फूड. डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर नर्वस सिस्टम. ठीक है, अब मैं पहले छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और फिर नर्वस सिस्टम चालू करूंगा. हमने निमेटोड का नर्वस सिस्टम किया है. इट इज वेरी सिमिलर एक्सेप्ट द नर्व कॉर्ड इज डिफरेंट, बट ये हम करेंगे ब्रेक के बाद. तो अभी 32 है, 35 पे आई विल ज्वाइन. ओके, टेक अ स्मॉल ब्रेक.
Okay, so nervous system in annelids important. Okay, ये पहला एनिमल है जिसमें अच्छा वेल डेवलप्ड एडवांस्ड नर्वस सिस्टम होता है. निमेटोड में थोड़ा बहुत था. ओके, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज? इसमें भी सुपरा फेरेंजियल गैंग्लिया होते विच इज कॉल्ड द ब्रेन. निमेटोड में भी था. फिर कनेक्टिव्स होते हैं. कनेक्टिव मतलब ऊपर से नीचे तक आने वाले नर्व्स. ठीक है, अभी नीचे आके यहाँ पे भी गैंग्लिया होते हैं, मतलब यहाँ पे भी ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं. ओके, एंड सो देयर इज अ सर्कमफेरेंजियल. सो ऊपर दो ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स है, नीचे दो गैंग्लिया है. दे आर नॉट कॉल्ड ब्रेन, ऊपर वाले को ब्रेन बोलते हैं. ठीक है, एंड दोनों को कनेक्ट करने वाले कनेक्टिव्स होते हैं, सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव्स. फिर नीचे जो ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन को मिलेंगे दैट इज कॉल्ड अ ganglion, that is a group of neurons. So in each segment you will see there is a ganglion. So there are groups of neurons in each segment, और ये आपको उसके टेल तक मिलेगा. So this line of ganglion will form a nerve cord like structure. The cord like structure is solid, मतलब अंदर होल नहीं है. हमारा स्पाइनल कॉर्ड में थ्रू एंड थ्रू एक होल होता है. सो आवर स्पाइनल कॉर्ड इज हॉलो, पर इसके अंदर होल नहीं होता है. सो इट इज अ सॉलिड नर्व कॉर्ड. ओके, सो वन याद रखो. सेकेंड, पूरे नर्व कॉर्ड में आपको ये स्वेलिंग्स मिलेंगे, swollen parts, that is a ganglia, and each ganglion is made up of group of neurons. So we say that the nerve cord is ganglionated, it is having ganglions. क्योंकि हमारा नर्व कॉर्ड जो होता है मैमल्स का या वर्टिब्रेट्स का, इट इज नॉन गैंग्लियोनेटेड, मतलब ऐसे स्मूथ होता है, उसके अंदर ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स नहीं मिलते आपको. ओके, सो इन एनिलिडा इट इज अ गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड. ओके, फिर वन मोर एडजेक्टिव. ये ऊपर वाला जो साइड है दैट इज कॉल्ड द डोर्सल साइड. वॉर्म ऐसा है तो दिस इज द डोर्सल साइड, द बैक, एंड दिस इज द फ्रंट और द वेंट्रल साइड. So if you see that the nerve cord is ventrally placed and it is ventral to the alimentary canal, ये उसका माउथ और एलिमेंट्री कनाल है, फेरिंग्स है, तो उसके नीचे है, मतलब वेंट्रल साइड पे है. हमारा नर्व कॉर्ड कहाँ होता है? पीछे होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड. सो वी हैव अ डोर्सल नर्व कॉर्ड, और ये इनवर्टिब्रेट्स में हमेशा होता है वेंट्रल नर्व कॉर्ड. ओके, तो अब हम उसको डिस्क्राइब करेंगे. सो दे हैव अ ब्रेन and a nerve cord. The brain is made up of two ganglia, that is suprapharyngeal ganglia. They are connected to the nerve cord via circumpharyngeal connectives. The nerve cord is made up of multiple ganglia. The ganglia are found in each segment, and the nerve cord जो ये गैंग्लिया के मिलने से बना है, the nerve cord is ventral, solid and ganglionated. Ventral, solid and ganglionated. Okay, पूरा आपको बोलना है. तो देखो क्या है, नर्व कॉर्ड इज सॉलिड, वेंट्रल एंड गैंग्लियोनेटेड. ओके, ऊपर से लिखा है डबल. ये डबल मतलब क्या? हर एक सेगमेंट में एक गैंग्लियन होता है, आपको एक दिख रहा है, एक इधर राइट में होता है, एक लेफ्ट साइड में होता है. सो थ्रू आउट द कॉर्ड देयर आर गैंग्लिया इस तरह के. सो द नर्व कॉर्ड इज सॉलिड, डबल, वेंट्रल एंड गैंग्लियोनेटेड. ये आपको पूरा याद करना पड़ेगा, और ये याद रह भी जाएगा क्योंकि हर एक एनिमल में हम डिस्कस करेंगे नर्व कॉर्ड, हर एक एनिमल का ब्रेन डिस्कस करेंगे, तो आपको कंपेयर करते करते सब याद रह जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ओके, फिर आप देखोगे इन एवरी सेगमेंट देयर आर स्मॉल एंड थिन नर्व्स कमिंग आउट, दे आर कॉल्ड सेगमेंटल नर्व्स. ओके, सो इन ऑल सेगमेंट्स देयर आर सेगमेंटल नर्व्स आल्सो. प्लस ये जो ब्रेन है उसमें से स्पेशल नर्व्स जाते हैं जो माउथ की तरफ जाते हैं. ओके, ये स्पेशल होते हैं जो माउथ में स्पेशल सेंसर्स होते हैं, जो कीमो सेंसर्स वगैरह के लिए. तो उसमें नर्व्स विल कैरी द टेक्टाइल सेंसेशन, मतलब टच का सेंसेशन ऑल्सो, एंड द कीमो सेंसेशन ऑल्सो, मतलब फूड पहचानने के लिए. लेकिन बाकी जो नर्व्स होते हैं वो टेक्टाइल होते हैं, और इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था फोटो सेंसरी, है ना, फोटो सेंसर्स भी होते हैं उसके डोर्सल सरफेस पे. ओके,
So you have to remember structure of the brain, structure of the nerve cord, and you have to remember there are segmental nerves also. फिलहाल इतना काफी है. सेंस ऑर्गन्स कौन से होते हैं? देयर आर मेनी सेंस ऑर्गन्स. ओके, वी आई जस्ट डिस्कस. एक तो टच वाले, मतलब टेक्टाइल, टच के सेंसर्स होते हैं टच पहचानने के लिए. गस्टेटरी, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब टेस्ट के लिए. तो उनको जो खाना खा रहे उसका टेस्ट भी होता है. ये जो गस्टेटरी सेंसर्स होते हैं एक्चुअली दे आर कीमो सेंसर्स, और अलग अलग फूड सब्सटेंसेस को पहचान सकते हैं. सो वी कॉल इट गस्टेटरी, मतलब टेस्ट के लिए. देन फोटो रिसेप्टर्स की भी हमने बात की. एंड लास्ट इज स्टेटोसिस्ट्स, जो एक्वेटिक फॉर्म्स है नेरीज जैसे, उसमें बैलेंस के लिए स्टेटोसिस्ट भी होता है. ओके. एंडोक्राइन सिस्टम नॉट डेवलप्ड येट. अभी तक कोई भी एनिमल में हमने हार्मोन्स देखे ही नहीं. पोरीफेरा में तो नर्वस सिस्टम भी नहीं था, उसके बाद नर्वस सिस्टम डेवलप होते गया ग्रेजुअली, लेकिन अभी तक हार्मोन सिस्टम नहीं आया है बॉडी को कंट्रोल या रेगुलेट करने के लिए. नेक्स्ट इज सर्कुलेशन. ओके, हमने ऊपर बताया दिस इज द फर्स्ट एनिमल फाइलम टू हैव अ वेल डेवलप्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम. ओके, वेल डेवलप्ड क्यों बोलते हैं हम? एक तो वो क्लोज्ड है. यू नो व्हाट इज अ क्लोज्ड सिस्टम. सेकेंड, इट हैज गॉट हार्ट्स, मतलब पंपिंग मैकेनिज्म भी है. ओके, and there are four pair, I mean let me write multiple pair of hearts. क्योंकि एक राइट साइड में हार्ट होता है, एक लेफ्ट साइड में होता है. उसका बॉडी में राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में होता है. सो देयर आर पेयर्स ऑफ हार्ट्स. ओके. देन ब्लड इज रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन. ये हीमोग्लोबिन एग्जैक्टली हमारे जैसा नहीं होता है, HB थोड़ा अलग होता है. उसका दूसरा नाम है एरिथ्रोक्रूरिन, लेकिन आप एनसीईआरटी में देखोगे तो हीमोग्लोबिन ही लिखा है, बट इज स्लाइटली डिफरेंट टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन. मैं ग्रे कर रहा हूँ, मतलब आपको याद नहीं रखना है. एंड दिस हीमोग्लोबिन आरबीसी में नहीं होता है बिकॉज दे डू नॉट हैव रेड ब्लड सेल्स, बट इट इज डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा. मतलब हमारा ऑक्सीजन हमारे आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ अटैच होता है, बट इनका ऑक्सीजन भी हीमोग्लोबिन से अटैच होता है, बट देर आर नो आरबीसी, वो प्लाज्मा में ही डिसॉल्व होता है. ओके, सो देर आर नो आरबीसी एंड नो ब्लड कॉर्पस्कल्स. कॉर्पस्कल्स मतलब सेल्स. वॉइस और किसी को प्रॉब्लम आ रहा है? वॉइस में और किसी को प्रॉब्लम आ रहा है? Okay, so then Samruddhi, it must be your connectivity problem. Okay, now there are no blood corpuscles, मतलब red blood corpuscles नहीं होते, but there are some amoeboid cells which are like WBCs or like leukocytes. ये क्या काम करते हैं? They are part of the immune system. और ये आपको उसके ब्लड में भी मिलेंगे और ये आपको उसके सीलम में भी मिलेंगे, सीलोमिक फ्लूइड में भी मिलेंगे. So I'll repeat: circulatory system well developed, closed, with multiple pairs of hearts. Blood is red due to hemoglobin, which is dissolved in plasma. There are no RBCs, no blood corpuscles, but amoeboid cells which have immune function. ठीक है, अब ये हम इसको हाईलाइट करेंगे. लीच, जो मैंने बताया हिरुडीनिया, लीच जो है उसमें क्लोज सर्कुलेशन नहीं होता, उसमें ओपन सर्कुलेशन होता है. अब ये एक्सेप्शन हो गया क्योंकि ऑल द एनिलिड्स दे विल हैव क्लोज सर्कुलेशन, सिर्फ लीच में नहीं है. मतलब आपको अगर एग्जाम में पूछा तो आपने क्लोज ही बोलना है, अनलेस आपको लीच का स्पेसिफिकली अगर पूछा है. यूजुअली पूछेंगे नहीं, फिर भी पूछा है तो you say it is closed circulation except in leech, that is hirudinia. Okay. Respiration, अर्थों में सब सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए अलग सिस्टम नहीं है, इवोल्यूशन में अभी तक बना नहीं. तो उसका गैस एक्सचेंज जो होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो बॉडी वॉल के थ्रू ही जाता है. ओके,
मतलब इट हर एक उसका बॉडी वॉल इज थ्रू द होल बॉडी, और हर एक सेगमेंट, इफ यू रिमेंबर, उसका सेगमेंट कंपार्टमेंटलाइज होता है, बॉडी इज कंपार्टमेंटलाइज। सो हर एक सेगमेंट में जो ऑक्सीजन लगता है वो ही सेगमेंट के बॉडी वॉल से आएगा, तो देयर इज नो नीड फॉर ट्रांसपोर्ट। ओके, ऑक्सीजन बॉडी वॉल में से आएगा और उसी सेगमेंट के ऑर्गन्स को पहुंचाएगा। ओके, सो फिर सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम दूसरे काम करती है, जैसे एक्सक्रीटरी मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना, टेक इट अप टू द नेफ्रीडिया, फिर न्यूट्रिएंट्स को एलिमेंट्री कैनाल में से लेना और दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचाना। ओके, सो ये सब काम करता है, लेकिन गैस एक्सचेंज का काम नहीं करता है। ओके, अब जो एक्वेटिक फॉर्म्स होते हैं, इन एक्वेटिक फॉर्म्स some may have gill like structures, gill like structures। और हमने ऊपर डिस्कस किया था पैरापोडिया, इसको गिल्स क्यों बोलते हैं? ओके, नाउ आई टोल्ड यू पैरापोडिया, ये उसका बॉडी है, तो देयर आर स्मॉल स्मॉल एक्सटेंशंस, ऐसा बम्प्स होते हैं ऑन द बॉडी, आई विल शो यू दैट। ओके, अभी मैं फिर पिक्चर दिखाता हूँ, लेकिन वो पोरस होते हैं, उसके अंदर होल्स भी होते हैं। ओके, और गिल्स क्या होता है? गिल्स आर फेरेंजियल गिल स्लिट्स, जैसे फिश जैसे एनिमल्स में होते हैं, तो पानी अंदर से जाता है और यहाँ पे होल्स होते हैं, एक्चुअली स्लिट्स होते हैं, नॉट होल्स बट स्लिट्स, और उसमें से या स्लिट्स में से या होल्स में से पानी बाहर जाता है, ऑन द वे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, सो व्हेनेवर यू हैव a hole or a slit like system in aquatic animals, so although they do not look like gills but they are actually a type of gills। so पैरापोडिया में होल्स होते हैं और उससे गैस एक्सचेंज में मदद मिलती है, तो उसको भी गिल्स या गिल लाइक स्ट्रक्चर्स बताया गया है। okay, I'll just now show you what is parapodia। okay, just a minute। मेरा गूगल सर्च दिख रहा है? एक मिनट, गूगल सर्च नहीं दिख रहा है? ओके, एक मिनट, आई शेयर। अभी दिख रहा है गूगल सर्च? I'll just show you what is parapodia, 1 minute। ओके, सो दिस इज द नेरीज, और ये जो साइड में दिख रहे हैं ना एक्सटेंशंस, दे आर पैरापोडिया। ओके, दीज आर नॉट सीटे। सीटे ऐसा होता है, ये ऊपर आगे जो है ना, यहाँ पे दिखाया नहीं है, तो दीज आर पैरापोडिया। ओके, लेट मी सी, और भी कुछ बड़ा दिखता है तो। ओके, देखो, हाँ, यहाँ पे सीटे और पैरापोडिया दोनों दिख रहा है। ये जो बड़े बड़े हैं दे आर पैरापोडिया, और ये पोरस होते हैं, इसमें से गैस एक्सचेंज होता है, लेकिन साथ में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी है, पैरापोडिया को लग के भी है,
और पूरे बॉडी पे देयर आर लॉट ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, दैट इज द सीटे। ओके, ये पैरापोडिया के साथ भी बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे, दे आर द सीटे। ओके, एंड पैरापोडिया ऐसा होता है, ये जो बड़ा बड़ा साइड में से निकल रहा है, दे आर ऑल पैरापोडिया। ओके, सीटे इतना अच्छी तरह दिखेगा नहीं क्योंकि वो पतले हेयर लाइक होते हैं। Okay, I'm going back to the file. अभी अपना फाइल दिख रहा है, फाइल दिख रहा है। सॉरी, अगेन आई हैव टू शेयर, रुको। One second. Okay. So parapodia are used for locomotion, plus they are also used for breathing or gas exchange of gases. So they are said parapodia are modified to form gills. Okay? They are not gills, but they are gill-like structures. Excretion. पानी में जो होता है वो हमेशा अमोनोटेलिक होता है, तो अमोनिया को एक्सट्रीट करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए। लेकिन अर्थवॉर्म यूरियोटेलिक भी हो सकता है, मतलब वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करेगा और फिर यूरिया एक्सक्रीट करेगा। ऐसा क्यों करता है कि जब रेन नहीं है, रेन कम होता है अगर, तो अमोनिया एक्सक्रीट करना पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज अमोनिया रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर टू बी एक्सक्रीटेड। तो वो क्या करता है, उसके जो कुछ ग्लैंड होते हैं उसके अंदर अमोनिया को एब्जॉर्ब करके उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है। यूरिया इज लेस टॉक्सिक और उसको निकालने के लिए कम पानी चाहिए, प्लस उसके अंदर वो नेफ्रीडिया होता है। नेफ्रीडिया याद है, मैंने बताया था, मेटानेफ्रीडिया। सो थोड़े बहुत एडवांस नेफ्रॉन्स होते हैं जो यूरिया को एक्सक्रीट कर सकते हैं। ओके, सो यू कैन फाइंड दैट एनिलिड्स कैन बी मेनली अमोनोटेलिक। एक्वेटिक वाले तो अमोनोटेलिक ही होते हैं। जो अर्थवर्म होते हैं, जब पानी ज्यादा होता है, मतलब मॉनसून वगैरह होता है, जब इनफ अमाउंट ऑफ वाटर होते हैं, तब दे आर ऑल्सो अमोनोटेलिक। लेकिन अगर बाई चांस पानी कम हुआ तो दे विल कन्वर्ट देयर अमोनिया टू यूरिया एंड फिर नेफ्रीडा के थ्रू यूरिया एक्सक्रीट करेंगे। ओके, रिमेंबर दैट। देन मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ मसल्स इन द बॉडी वॉल। नेरीज में पैरापोडिया भी काम करता है, बट अदरवाइज अर्थों में बॉडी वॉल के मसल से वो लोकोमोशन करता है। और जो सीटा होते हैं, सीटा, दे विल हेल्प टू ग्रिप द सराउंडिंग। ये अच्छा, अभी अपना लेक्चर खत्म होने वाला है एंड मोस्ट प्रोबेबली अगले सेशन से आपको राकेश सर, जो दूसरे सर सिखाने वाले हैं, ओके। तो आई एम गोइंग टू सेंड यू दीज नोट्स, वैसे तो आपके पास है, लेकिन जो मैंने आज जो लेटेस्ट भेजूंगा वो आप यूज करना, क्योंकि हम, आप देख रहे हो कि हम काम करते करते कभी कभी कुछ चेंजेस करते हैं, तो जूना फाइल हटा के नया फाइल आप यूज करना। ओके, नाउ एनी टाइम द लेक्चर्स विल स्टॉप, so it was nice. Maybe I will not be teaching you for some time, and you will get another beautiful excellent teacher, Rakesh sir. तो उनसे कॉपरेट करिए, यू कैन टेल हिम कि हमने कहाँ तक किया है। एक्चुअली मेरा टारगेट था कि हम आर्थ्रोपोडा भी कर ले, बट शायद नहीं हो गया। ओके, सो विल बी इन टच। जब आप कॉलेज में आओगे तो हम आप सब मिलेंगे भी, बट मे बी फॉर सम टाइम some other teacher will be taking your classes. फिर भी हम कोशिश करते हैं, अभी लास्ट टॉपिक है इसका, सेक्सेस, तो कोशिश करते हैं अभी 2 मिनट में हम कर सके तो। नाउ इसमें अलग अलग होता है, नेरीज इज यूनिसेक्सुअल, ओके, मतलब मेल फीमेल अलग होते हैं। लेकिन अर्थवर्म एंड लीच दे आर बाइसेक्सुअल, मीन दे आर हर्माफ्रोडाइट। नॉट ओनली दैट, अर्थवर्म में जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी थोड़ा अजीब तरह का होता है। ओके,
मेल और फीमेल साथ में आते हैं दोनों में, मतलब द अर्थवर्म में मेल और फीमेल एक्चुअली होता नहीं है, बिकॉज बोथ ऑफ देम विल हैव बोथ द गैमेट्स, लेकिन वन विल बी अ फंक्शनल मेल एंड वन विल बी अ फंक्शनल फीमेल। तो एक है जो अपने स्पर्म्स दूसरे के बॉडी में डालेगा, एंड ऑन द बॉडी देयर आर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पर्मेथिका, सैक्स जैसे होते हैं। तो एक वर्म दूसरे वर्म में के स्पर्मेथिका में स्पर्म्स डालेगा, ठीक है। एंड उसके बाद वो जो जो वर्म रिसीव करता है स्पर्म्स, दैट बिकम्स अ फंक्शनल फीमेल। और फिर वो अपनी बॉडी से एक ककून बनाएगा, अपना जो क्यूटिकल होता है उससे ककून बनाएगा। कोकून मतलब एग लाइक स्ट्रक्चर, उसमें वो स्पर्म्स आ जाते हैं, उसके ओवा भी आ जाते हैं, और फिर वो बॉडी में से ऐसे निकल जाता है और ककून अलग होता है और वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। सो देयर इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन, बट फर्टिलाइजेशन हैपेंस इन द ककून, सो इट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आई नो दिस इज शॉर्ट नोटिस, शायद आपको समझा नहीं होगा, आपको फिगर दिखाना पड़ेगा। सो वी आर एंडिंग द लेक्चर टुडे, मैं ये भेजूंगा, टेक केयर। साढ़े 4 बजे भी मेरा लेक्चर है, 1 करके हो चुका।